ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, خاص موضوع ہوتا ہے اور سحر حاصل گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں مختصر وقت میں. سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم. میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا. آج کا موضوع ہے آداب دعا اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے بائیں ہاتھ پر آپ کے ہمارے ہم سب کے پسندیدہ حضرت علامہ مفتی شاہد مدنی صاحب. السلام علیکم. ان کے ساتھ موجود ہیں ایک اور خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں, پہلی مرتبہ ہمارے پروگرام میں آئے ہیں, علامہ عثمان لاکھانی صاحب, آپ کو بھی السلام علیکم. ان کے ساتھ موجود ہیں نوجوان عالم دین علامہ مدنی رضا صاحب, آپ کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دائیں ہاتھ پہ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم مفتی غلام دستگیر صاحب, آپ کو السلام علیکم. اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے محترم مفتی اسحاق مدنی صاحب, آپ کو بھی السلام علیکم. آپ سب کا شکریہ, آپ تشریف لائے. تو آداب دعا پر آج ہم گفتگو کریں گے اور 2 دن رہ گئے کم و بیش 48 گھنٹے. تو یہ وہ لمحات ہیں, وہ ساعتیں ہیں جس کے بعد ایک نیکی کا ثواب 70 گنا والا معاملہ ختم ہو جائے. تو اب بھی اگر آداب دعا نہ سیکھے اور سیکھ کر اس پر عمل کر کے اس طرح سے دعا نہ کی تو پھر کب کریں گے؟ اگلا رمضان تو ہے نہیں ہے, زندگی کچھ پتہ نہیں. تو مفتی صاحب سب سے پہلے بتائیے تمہیداً دعا کس نیت سے مانگی جائے, ہوگی قبول یا نہیں ہوگی اس نیت سے, یا ہر صورت قبول ہوگی اس نیت سے؟ دوسرا یہ کہ دل میں جذبہ کیا ہونا چاہیے, ندامت والا, استغفار, توبہ, آئندہ گناہ نہ کرنے والا, یا سب سے پہلے اپنے اعمال کو ٹھیک کریں پھر دعا قبول ہوگی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شبیر بھائی, عبادات میں ایک اہم ترین عبادت دعا ہے جس کا ذکر اللہ کریم نے قرآن کریم فرقان حمید میں متعدد مقامات پر فرمایا ہے, اور احادیث نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا تذکرہ فرمایا. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, کہ جب اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں, فَإِنِّي قَرِيب, تو آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں. دوسرے مقام پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان, کہ جب دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے یعنی اللہ کو پکارتا ہے تو اجیبو, میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور جواب عطا فرماتا ہوں. یہاں پر جواب عطا کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات جو کہ رحمان و رحیم ہے, وہ اس بات کو پسند کرتی ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ مانگنے پر بندہ ناراض ہو جاتا ہے کہ مجھ سے مانگا جا رہا ہے, لیکن رب کی ذات وہ کریم ذات ہے کہ وہ نہ مانگنے پر ناراض ہوتی ہے کہ میں رب موجود ہوں, واجب الوجود ہوں, اور مجھے چھوڑ کر بندوں سے مانگا جا رہا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ تصور ہونا چاہیے کہ ہم نے ہر چھوٹی یا بڑی کسی بھی طرح کی مصیبت اور مشکل میں اپنے رب سے مانگنا ہے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دعا مانگنا ہے, ہمیں بعض اوقات اس دعا کی اہمیت اور اس کی عظمت کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے دعا میں کتنی طاقت رکھی ہے. ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء یرد القضاء, کہ قوت دعا یہ ہے کہ یہ جو دعا ہے یہ قضا کو پھیر دیتی ہے, قضا کو رد کر دیتی ہے. تو یہ بیان اس بنا پر کیا گیا, یہاں پر مراد ہے قضائے معلق. اب اللہ تبارک و تعالی نے دعا میں یہ طاقت رکھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ الدعاء سلاح المؤمن, کہ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے. اب جب نہ مشکل میں آتا ہے تو وہ اپنا ہتھیار استعمال کرتا ہے, تو مومن کا ہتھیار دعا کو قرار دیا گیا. اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ, کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے, عبادت کی اصل ہے. اب ان آیات اور ان تمام احادیث کو ملحوظ نگاہ رکھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم دعا کتنی مانگتے ہیں اور کیسے مانگتے ہیں.
कितनी मांगने से मुराद ये है कि नमाज खत्म हुई तो हमारी तवज्जो होती है राह फरार इख्तियार करना। इवन जुमातुल मुबारक में आपने देखा होगा कि जैसे ही इमाम साहब ने अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहा तो हमने बिल्कुल जंपिंग करना शुरू कर दी और हम मस्जिद से भाग गए। और अगर बिलफर्ज किसी मौके पर हम दुआ मांगते हैं तो उस दुआ में तवज्जो कितनी है। अब मिसाल के तौर पर आपकी मेरी गुफ्तगू हो रही है, आप मेरी गुफ्तगू को तवज्जो से सुनेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आप मेरी गुफ्तगू को तवज्जो से नहीं सुनेंगे तो मुझे हो सकता है बार महसूस हो कि मैं गुफ्तगू कर रहा हूं और तवज्जो नहीं की जा रही है, बिला तमसील। आप अल्लाह से मांग रहे हैं, अब अल्लाह ताला पसंद करता है कि मेरा बंदा मुझसे मांगे और अल्लाह दिल को जानता है। उस मांगने के वक्त आपकी तवज्जो अल्लाह की तरफ नहीं है, आपकी तवज्जो जो है वो दुनिया के अंदर है, असबाब के अंदर है, ऑफिस में है या दीगर मामलात के अंदर है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि ज़ौक़े दुआ नसीब नहीं होता। जब ज़ौक़ नहीं मिलेगा ना तो फिर आप बाज़ औक़ात इबादात तकल्लुफ़ से करेंगे और जब तकल्लुफ़ से करेंगे तो उसमें तकलीफ होगी और जब तकलीफ होगी तो हो सकता है कुछ टाइम के बाद आप छोड़ दें। अब बाज लोग हैं जिनसे 3 मिनट की दुआ नहीं मांगी जाती और बाज लोग हैं जो आधा आधा घंटा दुआ मांगते रहते हैं और उनकी आंखें आंसू बहा रही होती हैं और वो सिर्फ खुद नहीं मांग रहे होते बल्कि जितने लोग उनकी दुआ में शरीक होते हैं उस दुआ के बाद उनकी रूहानी कैफियत बदल जाती है और वो ये बात कहते हैं कि बस हम दुआ में शरीक हुए और उस दुआ से हमारे दिल की दुनिया बदल गई। हालांकि उनके अक्सर अल्फाज अगर अरबी में हो तो भी यही कैफियत होती है, ना समझ रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो उनकी दुआ के अंदर जो खुलूस है वो खुलूस कुलूबुन नास पर असर अंदाज हो रहा है। तो जब हम दुआ मांग रहे हैं तो हमें ये चाहिए कि सबसे पहले हम अपने कल्ब की तवज्जो अल्लाह ताला की रहमत और अल्लाह ताला की ज़ात को बनाएं। जब दुआ मांगे तो इस यकीन के साथ मांगे कि जो मैं मांगूंगा अल्लाह तबारक व तआला मुझे अता फरमाएगा। ये अलग बात है कि अल्लाह ने अपने जिम्मा करम पर ले लिया कि हम जो मांगते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इस पर नजर फरमाता है कि इसके हक में बेहतर क्या है। अब आपने मालो दौलत मांगा, अल्लाह तबारक व तआला जानता है कि ये मालो दौलत मिलने के बाद सरकश हो जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला आपको मालो दौलत अता नहीं फरमाता। आप ये समझ रहे हैं कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, दुआ आपकी कबूल हुई है, उसका अज्र अल्लाह ताला ने आखिरत में रख दिया है। अब मेरी आपकी जिंदगी में कई ऐसी दुआएं हैं जो हमने मांगी, जो मांगा जाहिरी तौर पे नहीं मिला। अब हम कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जाएंगे। अब जब अल्लाह की बारगाह में जाएंगे तो हमें बहुत सारा सवाब मिलेगा। अब पूछा जाएगा कि ये सवाब किस चीज का है, चूंकि हमने इसके लिए तो कोई अमल नहीं किया था। वो जो सवाब है वो उन दुआओं का है जो दुनिया में कबूल नहीं हुई। और फिर बंदा ये तमन्ना करेगा कि काश मेरी दुनिया में कोई दुआ कबूल ना होती और मैं उसके अज्र को आज अपने रब की बारगाह में पा लेता। तो जल्दबाजी ना करे दुआ के अंदर, खुलूस के साथ दुआ मांगे, यकीन मोहकम के साथ दुआ मांगे। अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक है, वो चाहे हमें वो अता फरमाए जो हम मांग रहे हैं या वो चाहे जो हमारे हक में बेहतर है वो अता फरमाए और अता वो वही फरमाता है जो हमारे हक में बेहतर है। तो तवज्जो के साथ हमें दुआ मांगनी चाहिए। जितना टाइम आपने फराइज सुनन को दिया है उसके साथ आप 3 मिनट तवज्जो के साथ दुआ को दे लें। 3 मिनट कोई ज्यादा टाइम नहीं है, उसमें आप सब चीजें मांग सकते हैं। और अगर बिलफर्ज आप अल्लाह की जात को छोड़कर लोगों की तरफ जाएंगे और दर दर से मांगेंगे तो फिर यूं समझ लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला के गजब को दावत देने के मुतरादिफ है और फिर आप मोहताज दर दर के रहेंगे। इसीलिए अहले दिल ये कहते हैं कि एक दर के हो जाओ, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। तो उस एक दर पर झुक जाएं, दर दर पे झुकने से आप महफूज हो जाएंगे। ये वो चंद चीजें हैं जिन्हें हमें मलहूज़ निगाह रखना चाहिए। अच्छा मुफ्ती साहब ये बताइए कि अब कोई गुनाहगार दुआ करना चाह रहा है, आज तौबा करना चाह रहा है, इन सातों में एक ताकरात भी बाकी है, कोई शब बारात आ गई, शब मेराज आ गई, आशूरे की रात आ गई, शब मीलाद आ गई, उससे लग रहा है कि रहमतें बरकतें हैं, मैं आज ये काम भी छोड़ दूंगा, आज ये तहिया करूंगा कि ये काम भी छोड़ दूंगा, लेकिन आमाल तो उसके बुरे हैं। आज वो नियत कर रहा है कि आज दुआ मांग रहा हूँ, आज तौबा करूंगा, तो उस पर भी ये उसूल लागू होगा कि तेरी दुआ कैसे कबूल होगी? तू अपने आमाल तो देख जो पीछे करता आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़िबला मुफ्ती साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज में दुआ के आदाब और उसके अहकामात के हवाले से बड़ी गहरी बातें फरमाई हैं। देखिए, जो आपने सवाल किया ना, बुनियादी तौर पर दुआ तो हर एक के लिए, नेक भी मांगेगा और गुनाहगार भी मांगेगा।
जब भी दुआ मांगी जाए तो पहले नीयत ये हो कि मैं जो रब से मांग रहा हूँ पहले ये यकीन कर ले कि वो मेरी पुकार को सुनेगा और वो ज़रूर मेरी दुआ को कबूल फरमाएगा, ये यकीन कामिल हो। जैसे कि हदीस मुबारक में फरमाया गया कि बंदा जब कोई नेक बंदा अल्लाह को पुकारता है और दुआ करता है अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला फरमाता है लब्बैक या अब्दी, ए बंदे मैं हाजिर हूँ। लेकिन जब गुनाहगार अल्लाह को पुकारता है ना, तो रब्बुल आलमीन एक मरतबा नहीं 2 मरतबा उसको लब्बैक फरमाता है, ए बंदे मैं हाजिर हूँ, तू मांग मुझसे मांग। यही वजह है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, देखिए ये मेरा या आपका किसी और का वादा होता ना तो हम इंसान हैं, हम गलती कर सकते हैं, हमारे वादे आगे पीछे हो सकते हैं। रब का वादा आगे पीछे, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। रब ने फरमाया उदऊनी अस्तजिब लकुम, ए बंदे मुझसे मांग। अब यहाँ कोई तखसीस नहीं है, मांग, तू मांगेगा मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। क्या बात, किसी किस्म की कोई तखसीस नहीं है, किसी को खास नहीं किया गया कि कोई जुब्बे और इमामे और दाढ़ी वाला मांगेगा तो उसकी दुआ कबूल होगी, गुनाहगार मांगेगा तो नहीं कबूल होगी। अल्लाह अल्लाह। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि इंसान जिस दिन अपने आप को ये समझे कि मैं नेक हूँ तो समझ ले उसी दिन वो गुनाहगार है। तो अपने आप को गुनाहगार तस्वुर करके अल्लाह की बारगाह में मांगे, रब्बुल आलमीन जरूर करम फरमाएगा। आज इसी बहुत ज़रूरी है। सुभान अल्लाह। मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद।